चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे पर बना रहे। सर सामने तो सभी कहते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि जो बच्चे यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं वो आपको कितना याद करते हैं। तो सर मेरी उनसे बातचीत होती है जैसे, तो अभी वो आपको कोई विदेश में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, वहाँ से आपको जो ब्लेसिंग भेज रहे हैं, एक बार मैं वो भी दिखाना चाहती हूँ। सर सभी यही चाहते हैं कि आप हमेशा जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छे कार्य करें और ऐसे ही सबके ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद सर। Hello everyone, myself is Sarabjit Kaur and I have passed my 10th from Balbhavan High School in 2010 or 11. Today is a very special day because it's our principal sir's birthday. Happy birthday sir, may God bless you. On this special day I just want to thank our principal sir कि उन्होंने हमें हमेशा मोटिवेट करा है हर चीज में, हर फील्ड में कि तुम बोलो। हमारे सर को हमेशा ये होता था कि मेरा हर स्टूडेंट जो भी मेरे स्कूल में आ रहा है, जिस वो बुक्स तक ही ना रहे, वो 4 बंदों के आगे अपनी बात बोल सके, इंटरेक्ट कर सके। स्पेशली मेरे अंदर से उन्होंने स्टेज फियर निकाल दिया है। और आज के टाइम में 15 इयर्स, आज के टाइम में आप मुझे किसी से भी इंटरेक्ट करवा लीजिए, मैं अपनी बात प्रॉपर तरीके से रखती हूँ और हर कोई मेरी बात को सुनने में इंटरेस्टेड भी हो। और इस सब का श्रेय जाता है हमारे प्रिंसिपल सर को। आज के बच्चे इंस्टा फेसबुक से मोटिवेट होते हैं, लेकिन हमारे टाइम में हमारे सर ने हमें मोटिवेट उससे भी बेहतर कर रखा। सो थैंक यू सो मच सर, हैप्पी बर्थडे। Those years were really unforgettable and special for me. And today is a very special day for our school staff and students because it's the birthday of our respected principal sir. I wish him a very happy birthday through this video. Sir, your guidance and kindness inspired and encouraged many students. I wish you a very happy birthday once again. Thank you. Hi to all and happy birthday to principal sir. So my name is Kashish and I have completed my 10th in 2017. Today we are in 2026. It's almost 9 years. I just want to say a huge thank you to you. I still remember when we were in school, you always forced us out of our comfort zone and onto that morning assembly stage. We used to be nervous, but you never let us back down. Thank you so much for that. Today in my professional life, that exact stage fear is completely gone. Now I can speak confidently, fearlessly in front of many people. This is just because of you. Thank you. Happy birthday. Enjoy your day and may you continue to inspire generation of students. Hello everyone, I am Satinder from 2011 batch of our school, an engineer by profession. It is honor to wish you a very happy birthday to our sir. You have been much more than a principal to us. You have been a mentor, guide and an inspiration. The value of a discipline, humanity and spirituality that we learn under your leadership continue to guide us in our personal and professional life. Whenever I look back to our school, I feel grateful for your wisdom, acknowledgement and the positive environment you created for every student. On this special occasion, I pray that God blesses you with good health and happiness. Happy birthday sir. Thank you. नमस्ते सर, आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कामना करता हूं कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। ऐसे ही स्टूडेंट्स को प्रेरित करते रहें, प्रोत्साहित करते रहें जैसे आपने हमें किया है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है सर कि आप हमारे मेंटोर रहे, प्रिंसिपल हैं और हर चीज़ आपने जो हमें सिखाई है, वो डिसिप्लिन, वो संस्कार, वो हमारे भारत का इतिहास, जो स्पीचेस आपकी हमें आज तक याद हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरित करती हैं, वो हम कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाएंगे। हमेशा जब भी कुछ नया करते हैं, वो सब हर चीज़ में आपकी याद सबसे पहले आती है। स्कूल को हम आज तक नहीं भूल पाए, जितना कहें उतना कम है, पर फिर भी छोटे से लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ सर, इट रियली मीन्स अ लॉट टू बी अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल एंड आपकी छत्र छाया में पढ़ना ही हमारे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विद अस, इट रियली मीन्स अ लॉट। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਥਡੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। 2016 ਦੇ ਬੈਚ ਆਊਟ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ। ਅਤੇ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਰਵਸ
ਨਰਵਸ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2016 ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੂਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੋਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ, ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੂਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਚ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੂਲ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਨਰਵਸਨੈਸ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜੀ ਗੱਲ ਜੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਹੀ ਦਿਖਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨਰਵਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। Hello everyone, good morning to Principal Sir, Ma'am and all the staff present there. Firstly, I would like to say happy birthday to the Principal Sir. I hope you are always happy and healthy in your life. So guys, my name is Tanu and I left the school in 2018. But even today, all those memories are very special to me. Honestly, at that time, we did not feel it much, but after leaving the school, I realized that what the real world is, because this school is literally felt like my home. The values, the discipline, the culture we received from this school, we cannot find it anywhere else. So on every occasion, whether it is Gandhi Jayanti, Guru Nanak Dev Jayanti, Nehru Jayanti, Principal Sir came on the stage and explained us each and every occasion in very explained manner. Seriously guys, and all those learnings are still with me and forever. I literally feel very lucky to have been the part of this school, and all those memories are with me for now and forever, and I truly miss those days. Thank you so much Principal Sir, Principal Ma'am and all the staff, all my staff, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जिन्होंने मुझे छोटे से बड़ा होते हुए देखा, मुझे कॉन्फिडेंस दिया, मुझे बूस्ट किया, मुझे पंप दिया कि तू कर सकते। गाइस, वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से तुम गेन कर सकते हो, तुम कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें हर टीचर आके कहेगा कि आज स्पीच दे दे, आज ये कर दे, डांस में पार्टिसिपेट करो, स्पीच में पार्टिसिपेट करो, न्यूज़ में पार्टिसिपेट करो। गाइस, डू एवरीथिंग, एवरीथिंग, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करो और अपना कॉन्फिडेंस, दैट इज़ योर प्लेटफॉर्म जहाँ से आप कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद आपको ऐसे चांस कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। इफ़ यू हैव दैट मच कैपेबिलिटी देन डू इट नाउ। सो it is the ending, and thank you so much sir for everything you have given to us, your guidance, your teaching, your blessings. Thank you so much once again. Happy birthday sir. Thank you. Good morning sir, I'm Sheetal, one of your formal student, wishing you a very happy birthday. May God bless you with good health, happiness and a long life. Today I'm working as an accountant, and I truly believe that the values and education I received at school have played an important role in my life. I just want to say that the success of the teacher is not only measured by the words, but by the success of the students. Your encouragement has stayed with us even after school. Wishing you good health and less happiness and प्रिंसिपल सर, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।
भगवान करे कि आपकी लंबी से लंबी उम्र हो और आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें और सबके जीवन में इसी प्रकार से जिस तरह आपने हमारे जीवन को रोशन किया है, शिक्षा देकर, हमें संस्कार देकर, हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाकर, वो सब चीज़ें हमेशा ऐसे बरकरार रहें। मैंने अपने जीवन में सबसे पहले जो शिक्षा की नींव होती है, जो नर्सरी में बच्चा रखता है, वो मैंने इसी स्कूल से रखी थी और नर्सरी में मैं इसी स्कूल में आई थी। उसके बाद मैंने 10th क्लास तक 2015 में ये 10th क्लास वहाँ से पास आउट की थी। 13-14 साल की जो हमारी ये जर्नी रही है, ये बहुत अनमोल रही है, क्योंकि अगर आप हमें ये सब ना सिखाते, एक एक दिन का महत्व ना बताते, हर दिन का हमें महत्व, हर दिन की कैसे क्या वैल्यू है, वो सारी चीज़ें हमने आपसे ही सीखी हैं सर। और सबसे बेस्ट पार्ट मुझे सबसे अच्छा लगता था जब हमारे स्कूल में गीता का पाठ सिखाया जाता था कि कैसे गीता के श्लोक याद करने हैं, और हर एक बच्चे को एक एक श्लोक याद करवाया जाता था। तो वो मतलब वो चीज़ें शायद ही किसी जगह होती होंगी, मैंने तो नहीं सुनी आज तक। तो इसलिए बस मैं यही दुआ करती हूँ कि भगवान ये स्कूल हमेशा यूं ही बना रहे और बच्चे, जो भी बच्चे वहाँ से पास होके गए हैं, आज वो अलग अलग मुकाम पे पहुँचे हैं। मतलब बहुत ही बेस्ट स्कूल रहा है ये हमारे जीवन का। और सर की इतनी गाइडेंस हमें मिलती थी, इतनी नॉलेज वो हमें देते थे। हमें हर बार मतलब हर स्कूल में जब भी कोई फंक्शन होता था तो लास्ट में सर का लेक्चर होता था, हमें वो सुनने को मिलता था। तो हम इतने खुश होते थे कि सर ने कितना कुछ सुनाया, कितना कुछ समझाया, है ना। तो बस भगवान से मैं यही दुआ करती हूँ कि भगवान हमारे सर को हमेशा ऐसे ही हंसता खेलता रखें और ऐसे ही वो बच्चों को ऐसे ही हर एक चीज़ सिखाते रहें और उनके जीवन में कभी कोई दुख, कभी कोई तकलीफ़ ना आए। हैप्पी बर्थडे सर। बर्थडे सर, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सर। मैं भगवान से आपकी लंबी उम्र और हेल्थ स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं संदीप मिलान 2012 बैच का पास आउट स्टूडेंट हूं सर। ये आपके ही आशीर्वाद का फल है जो आज मैं इंडियन आर्मी में अपनी सर्विस कर रहा हूं सर। मुझे आज भी याद है जो बचपन में आपने हमें स्टेज पे चढ़कर बोलने का मौका दिया, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इसी की बदौलत मैं आज अपनी यूनिट में हर फंक्शन पर, हर इवेंट में बढ़ चढ़ कर भाग लेता हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी यूनिट को 2-3 बार फर्स्ट प्राइज़ भी जिता के लाया हूँ सर। और सबसे बड़ा तो मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूँ कि आज भी हमें स्कूल का हर स्टाफ, हर टीचर वैसे ही जानता है जैसे हम उस टाइम पढ़ा करते थे। ये आपकी ही देन है सर, जो मैं आज तक याद रखा गया है अपने दिलों में। और मैं आपके जन्मदिन पर आपके लिए 2-4 पंक्तियाँ बोलना चाहता हूँ सर। है नहीं शब्द कैसे करूँ मैं आपका धन्यवाद, बस चाहिए हर पल आपका आशीर्वाद। हूँ जहाँ मैं आज उसमें है बड़ा आपका योगदान, जिन्होंने दिया मुझे इतना ज्ञान। शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं, मिले गुरु का आशीर्वाद उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ सर कि आज भी हमें स्कूल में याद किया जाता है, इनवाइट किया जाता है हर फंक्शन, हर इवेंट में। इससे बड़ा हमारे लिए और कोई उपहार नहीं होगा। जब भी हम स्कूल में आते हैं हमें अपने बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है सर। हम आज भी आपके वैसे ही स्टूडेंट हैं सर, हमेशा रहेंगे जैसे हम बचपन में थे। मैं आपको दोबारा आपके जन्मदिन पर विश करना चाहता हूँ सर। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे सर। भगवान आपकी लंबी उम्र करे सर। धन्यवाद। जय हिंद। गुड मॉर्निंग सर, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। होप आर यू डूइंग गुड। आज आपके जन्मदिन के अवसर पर मैं आपसे 2-4 बातें करना चाहता हूँ सर। मुझे आज भी याद है कि आप बच्चों को कितना मोटिव करते थे। हर लाइफ के स्टेप में आप हर एक बच्चे को गाइड करते थे। तो मैं उसके लिए आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम जब मैं स्टेज पे गया था, मैं उस टाइम बहुत डर रहा था आपसे, लेकिन उसकी बदौलत ये है कि आज मैं खुल के किसी के भी सामने बोल लेता हूँ, एक्सट्रोवर्ट बना हूँ। इट्स बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आप हर एक बच्चों को इस तरह से गाइड करते थे हर एक चीज़ में, चाहे वो कल्चर से रिलेटेड हो, चाहे बड़ों की रिस्पेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टडीज से, जिसकी वजह से आज हम अपनी लाइफ में कामयाब हुए हैं। हम आज भी काफ़ी यार दोस्त अलग अलग कंट्री में बैठे हैं, इंडिया बैठे हैं, कुछ सर्विस में हैं, कुछ सर्विस में नहीं हैं, लेकिन बात करते हैं तो हम अपने स्कूल के डेज़ को याद करते हैं, बालभवन स्कूल के डेज़ को।
स्पेशली वो दिन इतना अच्छे होते थे हमारे लिए कि हम स्टडी तो करते ही थे, साथ साथ आप हमें खेलने का भी मौका देते थे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवाते थे। वो सब याद करके काफ़ी अच्छा लगता है कि हमने बहुत अच्छा टाइम अपना बालभवन स्कूल में गुजारा है। इवन आज भी मम्मी डैडी से मेरी बात होती रहती है तो वो बोलते रहते हैं कि आपके सर मॉर्निंग वॉक पे, इवनिंग वॉक पे मिलते रहते हैं, आपके बारे में पूछते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, लिटरली, कि सर आज भी मतलब इतने बच्चों में आप हमें याद रखते हैं, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है सर। मैं भी आपको बहुत याद करता हूँ, मैम को बहुत याद करता हूँ, अपने स्कूल को बहुत याद करता हूँ। और इसीलिए आज ये मुझे वीडियो बनाने का मौका मिला है। इस वीडियो के ज़रिए मैं बताना चाहता हूँ कि आई मिस माई डेज, ऑल डेज, स्पेशली बालभवन स्कूल, एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे अगेन सर। आपकी उम्र लंबी हो, आप ऐसे ही बालभवन स्कूल को तरक्की की दिशा में लेके जाएं। जब भी कभी मैं इंडिया आऊँगा मैं दोबारा आपसे मिलने आऊँगा सर। थैंक यू सर। Namaskar sir. First of all, I am wishing you a very happy birthday. May God bless you with good health, happiness and a long successful life. लोग कहते हैं कि बचपन हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है और मैं मानती हूँ कि स्कूल हमारे बचपन को और भी स्पेशल बना देता है। स्कूल वो जगह है जहाँ हम दोस्तों के साथ हंसते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपने टैलेंट्स को डिस्कवर करते हैं और कुछ यादें बनाते हैं जो ज़िंदगी भर हमारे साथ चलती हैं। उन यादों के साथ साथ सर आपकी स्पीच, आपके वर्ड्स जो हमें हमेशा याद रहेंगे। आपके वर्ड्स हमें तब इनकरेज करते हैं व्हेन वी फील डिस्करेज। आपकी डिसिप्लिन ने हमें रिस्पॉन्सिबल बनना सिखाया है एंड योर काइंडनेस फील अस मेड सेफ एंड वैल्यूड। यू इंस्पायर्ड अस टू ड्रीम बिग, बिलीव इन आवरसेल्व्स एंड मेड अस अ गुड ह्यूमन बीइंग। थैंक यू सर, हमें स्कूल में एक ऐसा वातावरण देने के लिए जहाँ हम शिक्षा के साथ साथ बहुत और भी चीज़ें सीखते हैं, अपने देश के बारे में, मानवता के बारे में। हमें आज भी वो नारा याद है कि शिक्षा की डोर संस्कृति, राष्ट्रीयता, मानवता के उत्थान की ओर, और हम ये कभी नहीं भूलेंगे सर। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड फॉर अस, यू डिड फॉर स्कूल। हैप्पी बर्थडे सर वंस अगेन एंड हैव अ वंडरफुल डे। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सर। आपके लिए हमारे दिल से ये दुआ है कि आप हज़ारों सालों तक जिए। ये आपके गाइडेंस, एजुकेशन एंड सपोर्ट का ही नतीजा है कि आज मैं गूगल जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में क्वालिटी इंस्पेक्टर के पोजीशन पर काम कर रहा हूँ। हाय एवरीवन, आई एम युवराज वर्मा एंड मैं आपको बता दूं कि मैं 2019 का पास आउट स्टूडेंट हूँ। एंड अब मैं आप सभी के साथ अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं बालभवन स्कूल में पहली बार आया था तो मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा था, अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, क्योंकि इतने सारे इवेंट्स हुआ करते थे तुलसी बोर्ड ट्रस्ट की ओर से और मैंने कभी इतने इवेंट्स को विटनेस नहीं किया था। बट प्रिंसिपल सर, मैम और स्टाफ मेंबर्स की ओर से मुझे फुल सपोर्ट दिया गया और धीरे धीरे ना सिर्फ मैंने एकेडमिक अचीवमेंट्स को हासिल किया बल्कि उस कॉन्फिडेंस को भी अपने अंदर बूस्ट किया, क्योंकि मैं अलग अलग तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेशन लेने लगा। जैसे जैसे मुझे मोटिवेट किया गया और धीरे धीरे वो समय दूर नहीं रहा जब मेरे अंदर से हेजिटेशन नाम की चीज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। उस कॉन्फिडेंस ने जो कि मुझे बालभवन स्कूल की ओर से मिला था मेरी बहुत हेल्प की। जब मेरा गूगल में इंटरव्यू होना था, जब उसके 7 राउंड्स क्लियर करने थे, तो मुझे उस समय बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं हुई, क्योंकि वो चीज़ पहले ही मुझे बालभवन स्कूल की ओर से एज अ गिफ्ट कह सकते हैं आप मिल चुकी थी। तो मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ आदरणीय प्रिंसिपल सर, मैम और सभी स्टाफ मेंबर्स का, जिनकी वजह से मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आए हैं, इतनी मॉडिफिकेशंस हुई हैं। मेरी लाइफ में सिर्फ बालभवन स्कूल की ओर से मिली शिक्षाओं, एजुकेशन या स्किल्स का ही योगदान नहीं है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण जो कि एक जिसे हम गहना कह सकते हैं वो है यहाँ का कल्चर, यहाँ का एक संस्कार, जो कि प्रिंसिपल सर ने हर एक बच्चे में एक सिमिलर रूप से बोया, वो संस्कारों का बीज, जिसकी वजह से आज हम समाज में फैली कई तरह की कुरीतियों से बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। तो ये दिल से शुक्रिया है प्रिंसिपल सर का भी, मैम का भी और कंप्लीट मैनेजमेंट का कि वो इस तरह से ना सिर्फ एजुकेशन स्किल्स में ही बच्चों को आगे करते हैं बल्कि संस्कारों के बीज भी उनमें बोते हैं इस तरह से, ताकि वो लाइफ में अलग अलग तरह की बुराइयों से बच सके।
और ये प्रिंसिपल सर, मैम और बालभवन स्कूल की ओर से ही मिली शिक्षाओं का नतीजा है कि आज हम समाज में एक प्रतिष्ठित, एक बहुत ही ज़्यादा इज्जत वाली ज़िंदगी, एक अच्छी लाइफस्टाइल में हम लोग जी रहे हैं। तो दिल से शुक्रिया है प्रिंसिपल सर एंड मैम का कि उन्होंने लाइफ में जो कुछ भी किया। एंड आदरणीय प्रिंसिपल सर का बर्थडे है, तो एक बार दोबारा मैं विश करूँगा कि सर आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें, खुश रहें और हर एक में ये संस्कारों वाले बीज हमेशा ऐसे ही कायम रखें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद दोस्तों, आई एम सोल्जर इन द इंडियन एयरफोर्स। दिस इज़ वेरी स्पेशल डे, 5th अगस्त। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, हैप्पी बर्थडे सर। भगवान से यही दुआ करूँगा आज के दिन आपको कभी कोई दुख तकलीफ ना हो, आपकी लंबी उम्र की मनोकामना करता हूँ सर। यह हमारा सौभाग्य है कि हम आपके शिष्य हैं सर, आपके स्टूडेंट हैं, आप हमारे टीचर हो सर। एंड मैं आज जो भी हूँ सर, ये आपकी बदौलत हूँ सर। एक मेरा बेस बनाने वाले सर आप हो। यदि अगर आप मुझे ना समझाते तो आज शायद मैं यहाँ ना होता। मैं स्कूल में अपने क्लास में सबसे पीछे बैठता था। आपने मुझे डांट के टीचर्स को बोला ये कभी पीछे नहीं बैठना चाहिए, आगे बैठेगा। तो सर जब से और आज तक मैंने कभी पीछे नहीं बैठा हूँ। हमेशा यहाँ भी क्लासेस होती है, यहाँ भी लेक्चर होते हैं, ब्रीफिंग होती है सर, मैं कभी पीछे नहीं बैठा सर, हमेशा आगे बैठा हूँ और हर चीज़ों को समझने की, गहराई से समझने की कोशिश की है, हर चीज़ को अच्छे से किया। एंड सर मैं हमेशा भगवान से यही दुआ करूँगा मेरे स्कूल के बच्चे हमेशा कामयाब हो, स्कूल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे सर। एंड सर मैंने आपके लिए 4 लाइनें लिखी है, भैया मैं को पढ़ के सुनाता हूँ। फूलों की बगिया को बड़े ही प्यार से सजा रखा है, इसमें हर प्रकार के फूलों को लगा रखा है। कोई फूल मुरझा ना जाए बगिया से, विशेषज्ञों को अपने साथ जोड़े रखा है। जो देगा अपनी कली को इस बगिया में, उसको खूबसूरत फूल बना कर देने का दृढ़ संकल्प ले रखा है। सो सर वंस अगेन हैप्पी बर्थडे सर। ना हो पर वो तुम्हें कहीं से भी लाके देंगे, बेशक उन्हें उधार उठाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो तुम्हारे लिए हमेशा प्रेजेंट रहेंगे और तुम्हारी हर एक चीज को पूरा करेंगे। पर हम जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो वही 10 बच्चे 2 माँ बाप को बोझ समझ लेते हैं। सही है कि नहीं, है ना? तो जब अगर 2 माँ बाप हमसे नहीं संभाले जाते, फिर हम कहते हैं यार तेरे माता पिता तू संभाल, मैं क्यों संभालूं इसको, तेरे माता पिता तू संभाल। हम सोचते हैं कि कभी हमारे घर से जाए और दूसरों घर में जाके शिफ्ट हो जाए। ऐसा क्यों? कभी सोचते हैं इस बारे में बेटा? तो ये बहुत चीज सोचने की है कि अगर हम बढ़ते जा रहे हैं ना, तो हमारी मेंटालिटी ऐसी होती जा रही है कि हमें अपने माता पिता बोझ लगने लगे हैं। पर वही माँ बाप जब हम बचपन में अपनी गोद में बैठ के खिलाते थे, हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाते थे, हमारी हर एक इच्छा पूरी करते थे, उस समय हमें वो चीज़ क्यों नहीं रियलाइज? जब उन्होंने 10 को पालने के लिए 1 मिनट भी लगाया, 1 मिनट भी सोचा, पर हम जब उनको, हमारी जब उम्र बड़ी हो जाती है, हम उनके बारे में बार बार सोचते हैं कि हम कैसे सर्वाइव करेंगे, हम कैसे उसका खर्चा उठा सकते हैं। वो हमें चलाने नहीं पाते, पर उन्हीं के इलाज के लिए हमारे पास पैसे होते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि सर की सोच को हमें जो है सलाम है, जिन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया कि हम अपने माता पिता का पूजन कर सके। वैसे माता पिता का पूजन तो रोज करना चाहिए, पर एक दिन निर्धारित किया गया है जिसमें तुम अच्छे से अपने माता पिता को पूज सकते हो, क्योंकि माता पिता हमारे लिए क्या है, ईश्वर का रूप है। ठीक है बेटा, तो आप सभी जो है सर को हम विश करेंगे, जन्मदिन की बधाई देंगे। ये ब्लू हाउस वाले बॉयज आगे आ जाओ। सभी बच्चे एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ सर को विश करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू प्रिंसिपल सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, यूं हजारों साल की मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे
birthday to you. Once again, happy birthday. नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवता सेवया भागवतं उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यत् यत् आचरति श्रेष्ठा तत् तत् एव इत्रः जनः ते यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। प्रमाणं कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। जब श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है, एक महान व्यक्ति जब आचरण करेगा ना, आचरण यानी फॉलो करेगा, एक महान व्यक्ति जब फॉलो करेगा तो सारी जनता उसको फॉलो करती है। आप कभी कभी फिल्म देखते हैं, टीवी देखते हैं आप लोग, टीवी में कभी कभी किसी ने ना जिगजैग ऐसे बालों का बनाया होता है, किसने लंबे बाल रखे होते हैं, हम भी ऐसे लंबे बाल रखेंगे, हम भी जिगजैग बनाएंगे, हम भी मूछें रखेंगे, या हम भी ऐसे वाले कपड़े पहनेंगे। फिल्मी हीरोज को देख के कहते हैं, लेकिन वास्तव में हमारा आइडल कौन होना चाहिए? जैसे हमारे आर्मी वाले जो हमारे लिए अपने देश का बलिदान, अपना बलिदान करते हैं, हमारे देश के लिए अपना बलिदान करते हैं। यदि हम अच्छा कार्य करेंगे तो लोगों को सिखा पाएंगे। यदि मैं सिगरेट पी रहा हूँ और मैं लोगों को बोलूंगा कि आप सिगरेट मत पीजिए, तो मेरी बात का प्रभाव आपको पर पड़ेगा। अगर मैं रोज वाइन शराब पी रहा हूँ और मैं आपसे बोलूं कि आप मत पिया करो, तो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। लेकिन मैं पीता हूँ तो पहले मुझे आचरण करना पड़ेगा, पहले मुझे नशा छोड़ना पड़ेगा। यदि मैं नशा छोड़ूंगा तो मेरी वाणी पर प्रभाव आएगा कि आप भी बस बात मान पाएंगे। एक बार एक संत के पास एक पिताजी अपने बेटे को लेकर आए, कहने लगे गुरुजी हमारा बेटा ना गुड़ खाता है, इसे बोलो गुड़ मत खाया करे, गुड़ खाने से दांत खराब हो जाते हैं, गुड़ खाने से दांत खराब हो जाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं ऐसे 15 दिनों बाद अपने बेटे को लेकर आना, 15 दिनों बाद आप अपने बेटे को लेकर आना, 15 दिनों बाद बेटे को लेकर आते हैं, कहते 15 दिनों बाद फिर लाना, 15 दिनों बाद 1 महीना बीत जाता है, फिर 2 महीने बाद बुलाया जाता है, 2 महीने बाद पिताजी अपने बेटे को लेकर आते हैं। गुरुजी कहते हैं बेटा गुड़ मत खाना, पहले बार नहीं कहा, 2 महीने बाद कहा कि बेटा गुड़ मत खाना, गुड़ खाने से दांत खराब हो जाते हैं।
तो बच्चा गुड़ खाना छोड़ देता है। एक दिन पिताजी गुरुजी के पास दोबारा आते हैं, कहते पिता गुरुजी आप ये बात पहले भी मेरे बेटे को बोल सकते थे। तो गुरुजी ने बोला पहले मैं भी गुड़ खाता था, पहले मैंने 15 दिन गुड़ खाना छोड़ा, फिर 1 महीना छोड़ा, फिर पूरे 2 महीने लगे मुझे गुड़ खाने में। अब मेरी वाणी में वो प्रभाव आ गया कि अगर मैं जो भी बोलूंगा वो बच्चा को समझ आ जाएगा। इससे पहले हमें आचरण करना पड़ेगा। यदि हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे, ध्यान दीजिए, यदि हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो फ्यूचर में आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे। यदि आप अपने माता पिता को ओल्ड एज होम छोड़ कर आएंगे तो बच्चे भी कहेंगे भी इनको भी ओल्ड एज होम छोड़ दीजिए। यदि आप अपने गुरु की रिस्पेक्ट करेंगे, टीचर की रिस्पेक्ट करेंगे तो आप एक अच्छी पोस्ट पोजीशन पे जा पाएंगे। यदि आप सोचेंगे मेरी टीचर मैडम पागल है, सर पागल है, तो भले आप पास तो हो जाओ लेकिन आपको एक बड़ी जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि भगवान भी गुरु तक में आते हैं, समझे ना। तो यदि हम गुरु की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भले बच्चा थोड़ा नालायक हो, लेकिन अगर अपने माता पिता की सेवा करता है, अपने गुरु का सम्मान करता है, टीचर का सम्मान करता है, यानी स्कूल में तो पढ़ रहे हैं, बाहर जाके मैडम कौन है वो मैडम जा रही है वो मुझे मारती है, बाहर भी अगर आपको मैडम मिले तो भी उनको प्रणाम करो, बाहर भी अगर आपको सर मिले स्कूल में उनको प्रणाम करो, माता पिता जहां भी मिले उनको प्रणाम करो। यदि आप उनको प्रणाम करोगे तो उनकी सिर्फ ब्लेसिंग मात्र से ही आपको विद्या आ जाएगी। एक छोटा सा बालक 5 साल का, कौन? ध्रुव। अगर आपने भागवत में कथा सुनी हो, ध्रुव 5 साल का बालक गुरु के आदेशों का पालन किया, सिर्फ 6 मंथ उसने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया और भगवान विष्णु प्रकट हो गए। अब ध्रुव को आता कुछ नहीं, 5 साल के बच्चे को कुछ आता है? कुछ नहीं आता। उस भगवान ने क्या किया, अपना शंख ध्रुव के सर पे स्पर्श कर दिया। अब ध्रुव को सारी एजुकेशन आ गई, ध्रुव को सब कुछ ज्ञान हो गया, सारा ज्ञान ध्रुव को आ गया। इसी प्रकार यदि हम अपने गुरु के आदेशों का पालन करते हुए, अपने माता पिता के आदेशों का पालन करते हुए, उनका सम्मान करते हुए यदि हम भजन भी करते हैं तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से हमें ज्ञान आएगा। क्या आएगा? ज्ञान आएगा। यदि हमारे को समझ नहीं आता, हम भूल जाते हैं, सिर्फ इतना करना है, आपने अपने टीचर की रिस्पेक्ट करनी है, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी है। आपके कारण उनकी आंखों में आंसू ना आए कभी भी, समझ रहे हैं? आपके कारण आपके माता पिता की और आपके गुरु की आंखों में आंसू ना आए। यदि आप इस प्रकार से कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत महान व्यक्ति बनेंगे। आप ही में से कोई प्रधानमंत्री बनेगा, आप ही में से कोई राष्ट्रपति बनेगा, आप ही में से कोई एसपी, डीएसपी, आईपीएस बनेंगे। लेकिन वो लोग आपसे सीखेंगे तो पहले आपको आचरण करना पड़ेगा। आपने अपने देश के साथ चलना है, देश को आगे बढ़ाना है, भगवान का स्मरण करते हुए, ठीक है? बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, बोलो हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम हरे हरे, हरे हरे, आज हमारे सर का जन्म दिवस है, जिसको आपने बहुत ज्यादा खास बना दिया है सर। मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ और कृष्णा जी और राधा जी को भी मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे ही ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे सिर के ऊपर अपने हाथ रखिए।
ताकि हमारा जो ये तुलसीपत परिवार है वो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। और मैं आप सबको सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ मातृ पितृ पूजन दिवस के लिए। जैसे कि अभी पंडित जी ने बताया कि माता पिता की सेवा सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो मैं आप सभी को दिल से निवेदन देती हूँ कि आप 8 अगस्त जो हमारा भी शनिवार को सैटरडे वाले दिन शाम के समय आप सभी सादर आमंत्रित हैं। 5 बजे का समय है, तो आप जरूर अपने फैमिली को लेके आइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे। दोनों हाथ ऊपर पकड़िए और जोर से बोलिए, आपके आवाज बाहर तक जानी चाहिए। बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो बहुत बहुत भाइयों हरे कृष्ण। Good morning everyone. आप हैं स्कूल के सबसे बड़े, हमेशा रहते हैं डिसिप्लिन में खड़े, प्यार से हमें पास बुलाते, अच्छी अच्छी बातें सिखाते। हैप्पी बर्थडे सर जी, वंस अगेन थैंक यू। Good morning everyone. Respected principal sir, wishing you a very happy birthday. You are the best principal sir. Morning everyone. Respected principal sir, आपको अपनी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमारे स्कूल के सबसे बड़े और प्यारे हेड हैं। आप हमेशा अच्छी बातें सिखाते हैं। आज के दिन हम हमसे आपकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं। हैप्पी बर्थडे सर जी, हम सभी बच्चे आपको बहुत प्यार करते हैं। हैप्पी बर्थडे सर जी, नमस्कार जी। Yeah, everyone. Respected principal sir, wishing you a very happy birthday. You are the best principal in the whole world. Thank you for guiding us and loving us so much. We pray to God for your good health. We love you very much. Have a wonderful day. Thank you. Happy birthday, sir ji, once again. ज्ञान का दीप जलाकर आपने सवारा हमारा अटल, दुआ है स्वर से खुशियों से भरा है आपका हर पल। हैप्पी बर्थडे टू यू सर जी। मैम ये कंगना का ब्रदर है। वो जो आई थी ना सुबह, हाँ जी मैम, सुबह आई थी ना, उसका ब्रदर है। अच्छा, उसका भाई है। सुखजोत, अंशिका, समीर, कल लगे होंगे सर।
ये कौन सी क्लास है? ऐसे पकड़े इतने सारे। सर ऐसे ही बैठना है कि अर्पित कौन सी क्लास की है? कला होगी ना? वैशाली मैम की, वैशाली मैम कराती है। एक मिनट कलाकारी है। आवाज नहीं बिल्कुल बच्चे खाते हैं। कौन सी क्लास में बेटा? भर गए तो तुम्हारा मेज भर गया। Principal मैडम, स्टाफ मेंबर्स, प्यारे बच्चों, बड़ी बात क्या है, कुछ चीजें हम चाहते हैं तो होती हैं, कुछ नहीं होती, पर कुछ चीजें उस कुदरत की तरफ से हो जाती हैं। स्वास्थ्य ज़्यादा बोलने के अलाउ नहीं करता। आपने सुबह मैंने वंदना मैडम का संदेश देखा, प्रीति मैडम का संदेश देखा, तो वो एक मन के अंदर तैयारी कि चलो हम ऐसा करेंगे। सुबह उठा तो हमारे स्कूल के एक स्टूडेंट जो नर्सरी से पढ़ती आई, उसका फोन आया। आज वो कॉलेज करके जॉब करती है और उसको 5 अगस्त का दिन याद है। तो पिछले साल 10वीं में यहाँ से कंगना स्कूल जाने से पहले ऐसे ही एक अपना कार्ड बनाकर लाई। वो कार्ड बाजार से लाना हो तो 10, 20, 50 रुपए। पर जब बनाना हो तो उसके पीछे उसके दिमाग में एक काम कर रहा है, क्योंकि वो लाखों कार्ड प्रेस में छपते हैं। पर वो जो कार्ड उसने जिसको देना है, मेरे को देना है, अब स्कूल में नहीं रही, और उसने ये देखे ये कार्ड बनाया और एक बात का ख्याल भी रखा कि मैंने स्कूल अपने जाना है। तो मेरा यहाँ आने का इतना उत्साह नहीं था शारीरिक वजह से, पर मुझे फिर प्रभु से कामना कि मैं उस बच्ची का कार्ड स्वीकार करने के लिए और ये अब आप सबका प्यार पाने के लिए नीचे आया है। और साथ साथ देखो प्रभु भी ऐसे मौके पर यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए, कल तक कोई बात नहीं थी, पर आज सुबह ही पता लगा वो भी पहुँच गए। तो भाग्यशाली है हम, भाग्यशाली है हमारा स्टाफ, हमारे बच्चे, जिनकी भावों से आज
उन श्रद्धावान लोगों को भी यहाँ आने का मौका मिला और आप सबने भी अपने जीवन का आनंद लिया। केवल जन्मदिन मात्र से तो इस दुनिया में करोड़ों लोग जन्म लेते हैं, पर मेरा जन्म क्यों याद किया जाए, तो उस बात को सोचना है। मैंने सोचने के बाद ऐसा महसूस किया कि भगवान ने मेरे को जीवन यापन का जो साधन दिया है वो आप स्कूल है। और स्कूल क्या है, वो एक माध्यम है संस्कार देने का। तो जहाँ हम पढ़ाई की शिक्षा देते हैं, साथ साथ में ऐसा संस्कार देने का प्रयास करते हैं। तो हमने जो ये ट्रस्ट की स्थापना की, जन्मदिन तो आता जाता रहेगा, उसके आप बच्चों को और उनको उसमें आकर शामिल होना। पता नहीं कितने बच्चे, पहले हम स्कूल एंट्री से पहले पूछते थे कितने बच्चे माता पिता को प्रणाम करते हैं। कितने करते हैं? कोई बच्चे करते हैं? हाँ, अभी बचा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। ये तो इसमें काफी बात खड़े हो गए। हाँ, क्योंकि कुछ हम बड़े हो गए तो हम भूल जाते हैं, बाकी छोटे बच्चे तो बहुत अच्छा करते हैं। तो ये चीज अभी मैडम ने बताया था कि 8 बच्चे को 2 माँ बाप पाल लेते हैं, और जब उन बच्चों को माँ बाप पालने पड़ते हैं तो वो 8 हिल जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर संस्कार नहीं है कि मेरे जन्म से अब तक यहाँ विद्यालय तक पहुँचाने में मेरे माता पिता का कुर्बानी है, उसकी वजह से मैं पढ़ रहा। और अपने हम कहते हैं कि जो 8 अगस्त को शनिवार है, शाम का टाइम है, और आप अपने माता पिता को, भाई बहनों को लेकर यहाँ आए, उस दिन आपके घर में चूल्हा नहीं, यहाँ सबके लिए चूल्हा जलेगा। और यहाँ आकर यहाँ मंच पर, अब इतने जब बैठे हैं तो मंच पे कौन जाएगा जिसने मंच जैसा काम किया होगा। तो आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है, आपकी ड्यूटी है उनको यहाँ समाज के अंदर लाकर, परिवार को लाकर ये बताना कि तुम मेरे पूजनीय हो। कोई देवी देवता कोई है कि नहीं, पर साक्षात देवी देवता हो जो मेरे जीवन को जिन्होंने रास्ता दिया। तो ऐसा विचार रखकर जो जिस टीचर, जिन्होंने टीचर्स को नाम दिए हैं बच्चों ने, वो प्रयास करेंगे और अपने माता पिता को ये कहेंगे कि भाई हमें उस दिन जहाँ जाना है, मम्मी खाना वहीं खा लेंगे और जो मिलेगा हम यहाँ मिलकर रहेंगे। ऐसा एक प्रयास, तभी ये विद्या का मंदिर जिसके अंदर हम आते हैं, साल में एक बार आपसे उम्मीद की जाती है। तो जो भी बच्चे करेंगे मुझे अच्छा लगेगा, वो ही मेरे जन्मदिन की बात करेगा। आज से 54-55 साल पहले मैंने अपने माता पिता को खोया, और उस समय मैं भी आप ही की तरह था, सोचता था मैं ही हूँ जो, कुछ और कोई नहीं है। पर समय ने बताया कि आपके सबसे पहले जो भगवान है वो माता पिता है, और उसका पूजन साल में मैंने एक बार अपने विद्यालय में जाके कर। ठीक है, धन्यवाद। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।
लो मैम आराम से प्यार से। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।